بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 12 جون 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کچھ بھی ہو ہر برائی اختیار کر سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ اور خائن ہونے سے بچائے۔ وہ تمام مسلمان جو کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس حدیث کو سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ میرے دوسرے چینل سعودی اردو نیوز کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، اس پر اہم ترین خبر میں نے شیئر کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریاض سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ ریاض میں ایک زیر تعمیر منصوبے کے لیے بچھائی جانے والی پائپ لائن میں 6 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاض ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ محمد الحمادی نے کہا ہے کہ واقعہ کل بدھ کو ریاض کے جنوبی علاقے میں پیش آیا۔ العزیزیہ محلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ محکمہ شہری دفاع کو اطلاع ملی تھی کہ زیر زمین بچھائی جانے والی پائپ لائن میں کام کرنے والے 6 مزدور سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر فوری طور پر امدادی ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں تو معلوم ہوا کہ زیر زمین منصوبے کو پانی فراہم کرنے کے لیے 400 میٹر طویل پائپ لائن بچھائی گئی تھی جس کا قطر 1 میٹر ہے۔ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کے 6 کارکن ٹیوب میں کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ جب کافی دیر تک رابطہ نہیں ہوا تو شہری دفاع کی امدادی ٹیموں کو اطلاع دی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ شہری دفاع کی امدادی ٹیموں نے پائپ لائن کے اندر انہیں تلاش کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ 360 میٹر دور وہ 6 مزدور بے ہوشی حالت میں گرے پڑے ہیں۔ مزید جو اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ انہیں باہر نکال لیا گیا ہے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی مگر اس وقت وہ انتقال کر چکے تھے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ وفات کے اسباب اور کارکن کی سلامتی کے لیے احتیاط کیے جانے کے جو اقدامات ہیں وہ اختیار کیے گئے تھے یا کہ نہیں۔ ان مزدوروں کا کس ملک سے تعلق ہے اس کی اطلاعات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان جاں بحق ہونے والے پردیسی بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے حق حلال کی کمائی کے لیے اپنی جانیں دے دیں، اور ان کی جو بھی فیملی ہیں جس بھی ملک سے ان کا تعلق ہے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی مزید 2 خصوصی پروازیں جدہ سے 280 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئی ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ جدہ سے ملتان جانے والی پہلی پرواز کے ذریعے 140 مسافروں کو صبح 8:30 بجے جدہ سے روانہ کیا گیا، جبکہ دوسری پرواز جو کہ ملتان کے لیے ہی روانہ ہوئی ہے اس میں بھی 140 مسافر تھے اور دوسری فلائٹ 2 گھنٹے کے بعد روانہ کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، مسافروں کو ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے قونصل جنرل کے نمائندے باقاعدہ موجود ہوتے ہیں۔ وبائی مرض کے باعث بہت ساری انٹرنیشنل پروازیں بند ہوئیں تو بہت سارے پاکستانی اپنے ملک واپس نہیں جا سکے، جس کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے علاقے الخفجی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک فلپائنی خدامہ نے اپنے کفیل کے 2 بچوں پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے بعد خدامہ نے اپنی جان بھی لینے کی کوشش کی اور اسی دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئی ہے۔ الخفجی پولیس کا کہنا ہے کہ خدامہ کا تعلق فلپائن سے ہے، اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ دونوں بچوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جس میں ایک کی حالت بہتر ہے جبکہ دوسرا بچہ بہتر کنڈیشن میں نہیں ہے، اسے انتہائی نگہداشت کے سیکشن میں رکھا گیا ہے۔ پولیس نے پورے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور اس اسباب کو معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدامہ نے یہ سب کیوں کیا ہے۔
पुलिस ने बताया है कि खद्दामा के कफील से पूछगिछ करने पर मालूम हुआ है कि वो गुज़िश्ता 7 माह से इनके घर में काम कर रही है। इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं था और ना ही इस पर किसी नफसियाती मर्ज के आसार नजर आए हैं। इसके साथ अच्छा बर्ताव रखा जा रहा था। कफील ने बताया कि आखिर खद्दामा ने बच्चों पर इस तरह की हरकत क्यों की है और इसके बाद खुद को भी उसने जख्मी कर लिया है, इसकी वजूहात समझ में नहीं आई हैं। पुलिस इस खद्दामा के सेहतियाब होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद पूरे वाक़े की तहकीकात की जाएंगी कि यह वाक़या क्यों रोनुमा हुआ है। जो भी इसमें मुजरिम होगा उसे कानून के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 से 20 का इकनॉमिक सर्वे एक जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले पाकिस्तानी अफराद सऊदी अरब जाते हैं। 53% पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब का रुख किया है, जबकि 33% पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं, 4% से 5% ओमान का रुख करते हैं, जबकि 3% ने मुलाजमत के लिए मलेशिया का रुख किया है। सर्वे के मुताबिक वबाई मर्ज कोरोना के बायस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जो तरसीलात हैं, यानी रकम भेजने की जो सलाहियत है, वो काफ़ी मुतासिर हुई है। याद रखें, पिछले अप्रैल में लॉकडाउन, तेल की कीमतों में कमी और मुलाजमत से बरतरफ होने के बायस पिछले साल इसी माह के मुकाबले में ज़र्रे मुबादला 5.5% से कम रहा है। ताहम जुलाई से अप्रैल के दौरान इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पैसे पाकिस्तानियों ने तकरीबन $18 करोड़ पाकिस्तान को भेजे हैं, जो कि पाकिस्तान में माईशत के लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानियों ने जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, बहुत ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजी है, जबकि दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अमारात, तीसरे नंबर पर अमेरिका से और उसके बाद बरतानिया से जो करेंसी आई है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होकर, वो कंसीडर की गई है। इसी सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान से मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब से रही है। पंजाब से 3,12,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 1,86,000 और सिंध से 57,000 से ज़ायद अफराद बैरून मुल्क गए हैं। इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आलमी माशी सूरत हाल और सफरी पाबंदियाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को शदीद तौर पर मुतासिर कर रही हैं और आर्जी या मुस्तकिल तौर पर बेरोजगारी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सऊदी अरब में इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की मौजूद है कि 53% पाकिस्तानी सऊदी अरब में आकर रोजगार तलाश करते हैं। इसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के जो आवाम हैं, मैं इस चैनल के ज़रिए तमाम सफारतखाने के मेंबरान से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानियों की सूरत हाल है, इस पर लाजमन नज़रसानी की जाए और पाकिस्तानी अवाम जो भाई यहाँ पर काम करते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, सफारतखाना आगे बढ़कर दूसरे ममालिक के सफारतखानों की तरह अहम रोल अदा करे, ताकि पाकिस्तानी भाइयों की जो मुश्किलात हैं वो कम से कम हो सकें। सऊदी अरब के शुमाली रीजन अल जौफ में 77 मसाजिद को नमाज जुमा के लिए दोबारा खोलने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि अल जौफ कमिश्नरी में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए इकदामात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद 77 मसाजिद को नमाज जुमा के लिए खोल दिया गया है। अल जौफ के इलाके में दोबारा खोली जाने वाली मसाजिद की तादाद 175 के करीब हो गई है। अल जौफ इस्लामी अमूर के सरबराह ने कहा कि वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए मसाजिद में नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासले के इंतजामात की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है और इसी बुनियाद पर दोबारा से मसाजिद खोली जा रही हैं। तमाम मसाजिद में आने वाले नमाजियों पर लाजम है कि वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घरों से वज़ू कर करें और जो भी वजारत सेहत के कवानीन हैं उस पर मुकम्मल अमल करें। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि वबाई मर्ज से मुतासर होने वाले इंतहाई ख़तरनाक जो केसेस होते हैं उसमें काफ़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वजारत सेहत का कहना है कि एक दिन में ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में अगरचे वबाई मर्ज के मरीज़ों की तादाद 4,000 के करीब रही, ताहम ख़तरनाक मरीज़ों की तादाद सिर्फ 12 रही है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अगर इन्हें हल्का सा भी शुबा हो कि वबाई मर्ज से वो मुतासर हो चुके हैं तो फौरी तौर पर
پر वजारत सेहत के हेल्पिंग नंबर 1900 पर राब्ता करें। टीमें इनके पास खुद आकर मुकम्मल मुआयना करेंगी। अगर वबाई मर्ज के शवाहिद मिले तो इन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा ताकि वबाई मर्ज दूसरों को मुतासिर ना कर सके और इनका इलाज भी मुमकिन हो सके। किसी भी मुल्क में अगर म्यूनिसिपलिटी यानी बल्दिया का इदारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हो तो आवाम के आधे से ज़ायद मसाइल ऑटोमेटिक हल हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मक्कातुल मुकरमा और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में नज़र आती है। मक्कातुल मुकरमा म्यूनिसिपलिटी ने गुज़िश्ता दिनों शहर भर में 1954 तफ्तीशी दौरे करके 204 दुकानें बंद की, जबकि जद्दा म्यूनिसिपलिटी ने 136 दुकानों को बंद कर दिया है। वबाई मर्ज कोरोना के बायस जो भी दुकानदार एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और दुकानें सील की जा रही हैं। मार्केटों और आम रिटेल और होलसेल्स की दुकानों के तफ्तीशी दौरे किए जा रहे हैं, क्योंकि अवाम की सेहत हर तौर पर अव्वलीन तरजीह है। चाहे जिसका किसी भी शख्स का जितना बड़ा भी कारोबार हो, अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेगा तो इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे। जद्दा और मक्का में इसे ख़ास तौर पर नज़र में रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की बिना पर मुख्तलिफ वबाई मर्ज के फैलाव का सबब बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी टीमें हर छोटी बड़ी दुकान के अलावा मारूफ शॉपिंग सेंटर्स में भी जा रही हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर रही हैं जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। ये सऊदी हुकूमत की अच्छी कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि वबाई मर्ज को कंट्रोल करना हर तौर पर मुमकिन बनाया जा रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुमे के रोज़ ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मक्कातुल मुकरमा, अलबहा, असीर और जजान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि रियाद और ईस्टर्न रीजन में गर्दो गुबार का तूफान रहेगा। सबसे ज़्यादा गर्मी रियाद, अलहसा, यम्बो इन इलाकों में पड़ी है, जहाँ टेम्परेचर 44 यानी 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम टेम्परेचर तुरैफ के इलाके में रिकॉर्ड हुआ है। 16 डिग्री वहां पर टेम्परेचर है, जो कि बेहतरीन मौसम को जाहिर करता है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।